Good afternoon, everyone. This is Vinay speaking. Uh, um, I am basically the head strength and conditioning coach of ISST Pune Institute of Sports Science and Technology. Today, we are going to be uh, running through a workshop for conditioning for youth, junior and youth cricketers. Firstly, thank you, Cricket Academy of Pathans, for having me here giving this presentation. And thanks to all the players and coaches who are a part of this workshop. So the topic today is going to be about the physiological demands for junior and youth cricketers and how we can improve the physiological aspects of cricketers through proper training methodologies and through a scientific approach. So firstly, a brief intro about myself. I have been a strength and conditioning coach for the last 5 years, having worked with various organizations. To name a few, I have worked recently with the Indian under 20 football team men's, preparing for the SAF games in Nepal and the AFC qualifiers, which was held in Laos. I've also been attached with the Indian women's hockey team, the A team, during the Commonwealth Games Birmingham preparation camp, which was in Sai NCOE Bengaluru. I have also gone on to work with MSK Prasad's International Cricket Academy, Hyderabad, where I have worked closely with excuse me, where I've worked closely with uh, cricketers, right from batsmen, batters to bowlers to wicket keepers. I have also had a close uh, work relation with the fast bowlers at the academy, having worked with a number of state and district level players representing Andhra Cricket Association and Hyderabad Cricket Association. I have also worked with Sports Authority of India, NCOE Aurangabad, as the lead SNC coach. I have worked with JSW Sports Inspire Institute of Sport Bellary as the assistant strength and conditioning coach. Currently, I am working as the strength and conditioning coach for the Institute of Sports Science and Technology, Pune. I am working as the head of SNC. So we'll quickly start off with the presentation. The topic is conditioning for junior and youth cricketers. So as you can see the graph over here, physical performance contributors to winning. So we all know that there are 4 areas which we need to focus on to develop a cricketer or any athlete. They are physical, tactical, technical and mental, the psychological part. We are purely trying to focus on the physical aspect today over here, pertaining to the physiological demands contributing to winning in a cricket player and a cricket match. So you can see over here cricket is placed somewhere in between, not too much towards the endurance side, nor is it too much towards the strength aspect of the sport, neither is it too speed biased, but somewhere in the middle where there is a combination of endurance, strength and speed required. Very well known for everyone right now that cricket is evolving. It's become a high intensity sport. Earlier we used to have a 6-day multi-day cricket match. Now it's come down to 5 days, and even in that, now right now we are finishing matches in within 3 days. If you look at the recent trend, T20 has made the sport more explosive, more higher intensity biased, and the players get very less recovery time between each bout, whether they are a batter, a bowler or a fielder and a wicket keeper. So you can see from this graph, based on study, that cricket is somewhere placed in between, where it needs a combination of both speed, strength and some amount of endurance as well to be able to play especially the multi-day cricket, the test matches. So coming to the physiological demands of cricket, cricket is a highly intermittent short sprint sport with a substantial base of low intensity activity that varies depending on the format. More recently, cricketers have been seen to cover up to 8 kilometers during a full T20 match.
So this itself speaks for itself. It's become a highly intermittent short sprint sport. So intermittent is with breaks in between. For example, a bowler bowls the ball, he's getting 20-30 seconds to recover, and then he again has to run up, come, load, and deliver the ball with high intensity. With a substantial base of low intensity activity that varies depending on the format. Now, this low intensity activity is basically the recovery time or the time where the intensity is very low. Now, more of it is predominant when we play a टेस्ट मैच. जब हम लोग एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो लो इंटेंसिटी एक्टिविटी का ज़रूरत काफ़ी पड़ता है. यहाँ पे एरोबिक एंड्योरेंस जो बोलते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टर फॉर्मेट्स जो है T20 हो गया या फिर वनडे क्रिकेट हो गया, इसमें हमें एंड्योरेंस की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट और मैं ये आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे इम्पॉर्टेंट है. बट हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है कि हाईली इंटरमिटेंट शॉर्ट स्प्रिंट स्पोर्ट हो गया है. तो मतलब छोटे छोटे बर्स्ट में एक्सप्लोसिवनेस ज़रूरत पड़ता है. पेस करना है इनिंग्स को, कब एक्सेलरेट करना है, कब स्टेडी रखना है, कब डिसलरेट करना है, कभी स्लो करना है इनिंग्स को, ये बहुत मैटर करता है आज के क्रिकेट स्पोर्ट में. Recently, cricketers have been seen to cover up to 8 kilometers during a full T20 match. तो आप इससे देख के पता लगा सकते हो कि 8 किलोमीटर भाग रहे हैं, कवर कर रहे हैं एक T20 मैच में. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एंड्योरेंस ज़रूरी है, कितना फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, उसके लिए फिजियोलॉजिकली कितना फिट रहना चाहिए आपको. एक T20 मैच, यहाँ पे बात सिर्फ एक T20 मैच की हो रही है. 50 ओवर और मल्टीडे क्रिकेट में तो और भी डिस्टेंस कवर किया जाता है. तो एक T20 मैच जहाँ पे हाई इंटेंसिटी चल रहा है उसमें भी 8 किलोमीटर कवर कर रहे हैं दोनों इनिंग्स मिला के. तो हाउ मच एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड. सो नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. हाउ टायर्ड डू यू गेट आफ्टर अ ट्रेनिंग सेशन? इवैल्यूएट फॉर योरसेल्फ एंड थिंक कि एक सेशन जो होता है आपका, प्रैक्टिस जो होता है, आप एक सेशन जो सुबह शायद 2 घंटे कर रहे हो, शाम को 2 घंटे कर रहे हो ट्रेनिंग, कितनी थकान हो रही है. हाउ टायर्ड आर यू? That itself shows that how the sport has changed, कितना इवॉल्व हो चुका है और कितना रिक्वायरमेंट है फिजिकल परफॉर्मेंस का एक क्रिकेटर से. Targets of physical performance in cricket. Given the length of the international cricket season and touring demands, superior aerobic fitness is thought to assist players to recover and sustain elite performance. Excuse me. तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, अभी का जो क्रिकेट सीजन है वो इतना लंबा हो चुका है. आप इंटरनेशनल क्रिकेटर को देखते हो कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है. शायद वो T20 हो सकता है, टेस्ट मैच हो सकता है, या फिर वनडे गेम, या तो वो सीरीज हो सकता है, या फिर कोई टूर्नामेंट आ जाता है, या फिर T20 का सीरीज होता है, ट्रायंगुलर सीरीज होता है. सो अलग अलग फॉर्मेट्स जो है बैक टू बैक थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है. तो ऑलमोस्ट एक साल में 200 से 250 दिन क्रिकेटर फील्ड पे रहता है बिजी. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फिटनेस रहना ज़रूरी है इंजरी से बचाने के लिए और एट द सेम टाइम जो एरोबिक फिटनेस है उसको मेंटेन करने के लिए. तो यहाँ पे जो सुपीरियर एरोबिक फिटनेस है इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये सिर्फ गेम के लिए ही नहीं बट अलग अलग कंडीशंस में खेलने के लिए, अडेप्ट होने के लिए भी बहुत हेल्प करता है एरोबिक फिटनेस. आप हर टाइम इंडिया में नहीं खेलोगे, कभी बाहर कंट्री के जाके खेलोगे, शायद ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, जहाँ पे वेदर कंडीशंस अलग हो गए. वहाँ के अप्लाटाइज होने के लिए आपको एरोबिक फिटनेस ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको थर्मो रेगुलेशन जो बोलते हैं वो क्रिएट होता है, जिससे आप जल्दी अडेप्ट हो सकते हो उस वेदर के लिए और खेल पाओगे वो वेदर में. टेस्टिंग बैटरी फॉर क्रिकेटर्स. यहाँ पे जो प्लेयर्स है जो कैंप्स में है, जो अपने स्टेट कैंप्स में हो, आपके ट्रेनर्स आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करते हैं. तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या टेस्ट होता है. यो टेस्ट हो गया, ये तो बहुत ही फेमस टेस्ट है, सब प्लेयर्स को आजकल ये टेस्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है एरोबिक फिटनेस और एंड्योरेंस का अंदाज़ा लगाने का. तो यो इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट्स. व्हाट आर द वेरियस पोजिशनल डिमांड्स इन क्रिकेट? एक बैट्समैन का, बॉलर का, विकेट कीपर और फील्डर का. तो एक बैटर, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर का पोजिशनल डिमांड्स क्या है क्रिकेट में? तो यहाँ पे जो है मैं इस चीज़ की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंडीशनिंग जो है, फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है,
वो महज एक क्रिकेट के लिए स्टैंडर्ड नहीं होता है सबके लिए। अभी ऐसा नहीं कि एक बैटर को भी, बॉलर को भी, विकेट कीपर को और फील्डर को, सबको एक समान ट्रेनिंग करोगे। एक बैट्समैन का अलग होगा अप्रोच, एक बॉलर का अलग होगा, एक विकेट कीपर का अलग होगा, फील्डर का अलग होगा। सबके अपने अपने अलग रोल्स है, सबके अपने अपने डिमांड्स है। बॉलर का रन अप बहुत मैटर करता है, बार बार बैट्समैन का रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स मेंटेन करना है, उसको गैप्स फाइंड करने हैं, विकेट्स के बीच में जल्दी रन्स जोड़ना है। विकेट कीपर को स्टंप्स के पीछे हमें लगता है कि ज़्यादा नहीं होगा, भागेगा नहीं, बट मैं आगे जाके दिखाता हूँ कि आपकी विकेट कीपर की कितनी एंड्योरेंस कैपेसिटी मायने रखती है उसका प्रॉपर कीपिंग करने के लिए। एक फील्डर का भी आउटफील्ड में कैसे डिमांड होता है। तो सबसे पहले बैटर्स, ड्यूरिंग अ 30-minute innings, T20 batters have been shown to cover 2.5 kilometers approximately. The demands of batting also require a high level of aerobic fitness in order to play for up to 6 hours. तो इससे आपको समझ में आएगा कि 30 मिनट में 2.5 किलोमीटर भाग रहा है अंदाजे से एक बैट्समैन एक T20 इनिंग्स में, तो कितना फिजिकली फिट होना चाहिए, हार्ट कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी कितना अच्छा होना चाहिए कि एक बीट में कितना ब्लड पंप कर पा रहा है आपका हार्ट, कितना कैपेसिटी है आप में रिकवर होने के लिए। एक दो रन भागने के बाद आपको अगले बॉल के लिए 20 सेकंड हो गए, कितनी जल्दी से आप रिकवर कर पा रहे हो और फिर से वही इंटेंसिटी के साथ खेल पा रहे हो, क्योंकि T20 में आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको जल्दी जल्दी बनाने, रन्स जोड़ने जितने हो सकते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। नाउ द डिमांड्स ऑफ बैटिंग ऑल्सो रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ एरोबिक फिटनेस। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, 6 घंटे एक दिन में खेलना पड़ता है टेस्ट मैच जब आता है बात, तो एक बैट्समैन को कितना एरोबिक फिटनेस मेंटेन करना चाहिए ये आपको समझ सकते हो कि 6 घंटे अगर वो एक बैट्समैन पूरा दिन खेल जाता है तो कितना फिजिकली फिट रहना चाहिए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजी को समझे हम लोग, एक बैट्समैन का कैसे उसको उसके हिसाब से ट्रेन करना है ये भी समझे। अभी बात आती है बॉलर्स की। व्हेन वी गो टू बॉलर्स, वी हैव फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेस बॉलर्स, मीडियम एंड देन स्पिन बॉलर्स। तो वुलमर्ग जो है एक फेमस कोच है और क्रिकेट के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है फास्ट बॉलिंग के बारे में as one of the most demanding activities in the world of sport. To reach the pinnacle of the game and prosper there, modern fast bowlers must be among the most athletic of humans. So, I hope you are able to understand what I'm trying to say over here. One of the most athletic of humans, fast bowlers को माना जाता है, क्योंकि 20-25 यार्ड से दौड़ के आएंगे बॉलर्स, बॉल डालेंगे और वापस फिर जाना है, फिर से डालना है। और अगर ये एक टेस्ट मैच हो जाए तो पूरे दिन में कितने ओवर्स डालते हैं बॉलर्स, कितना फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहना चाहिए, कितना फिजियोलॉजिकल डिमांड रहता है उनका, ये आपको अंदाज़ा लगा सकते हो आप। T20 में कितने वेरिएशंस, कितना एफर्ट के साथ डालना है हर एक बॉल, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर बॉल इंपॉर्टेंट होता है 20 ओवर में। सो यू कैन सी हियर वुलमर्ग ने जो कहा कि modern fast bowlers must be among the most athletic of humans. Now, which bowler are you? आप कौन से बॉलर हो, आप फास्ट बॉलर हो, मीडियम पेस हो या फिर स्पिनर हो? इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम पेस बॉलर या फिर स्पिनर एफर्ट नहीं लगाते हैं। फास्ट बॉलिंग चैलेंजिंग होता है, बट एट द सेम टाइम ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है स्पिनर के लिए भी और मीडियम पेस बॉलर की, आपका भी काफ़ी एफर्ट लगता है हर एक स्पेल में। कितने ओवर कंटिन्यूसली डाल रहे हो, कितना फिटनेस है आपका। आप जडेजा को देख लो, वो उतना फिटनेस मेंटेन कर पा रहा है इसलिए जल्दी जल्दी अपने ओवर्स के स्पेल को कंप्लीट कर पा रहा है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वो एक्यूरेसी के साथ डालना, जो डिसीजन मेकिंग है, वो कंसंट्रेशन है, वो सब डिपेंड होता है आपके आपके फिजिकल फिटनेस पे। मेंटल और फिजिकल दोनों कनेक्टेड होते हैं, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विकेट कीपर, interestingly, wicket keepers rarely sprint long distances, despite still covering a daily distance of 16 kilometers in multi-day cricket and 6 kilometers in T20. तो मैंने जैसे बताया था आपको, विकेट कीपर्स पीछे खड़े हैं स्टंप्स के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कम हो रहा है काम।
इनफैक्ट उनका सबसे चैलेंजिंग रोल होता है, क्योंकि स्क्वाट पोजीशन में रहते हैं, बॉल ऑफ द फीट पे हमेशा कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत हाई रहना चाहिए, क्योंकि बॉल कहाँ पिच कर रहा है, कहाँ पे जाने वाला है, कैसे उनको रिसीव करना है बॉल को ग्लव्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ ध्यान में रखना कि विकेट कीपर जब फास्ट बॉलिंग कोई कर रहा है तो ऑलमोस्ट 20 यार्ड्स दे आर बिहाइंड द स्टम्प्स। एक पिच का डिस्टेंस 22 यार्ड्स होता है और स्टम्प्स के पीछे 20 यार्ड खड़ा के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है विकेट कीपर। तो हर बॉल के बाद जब बॉल आउटफील्ड में जाता है तो द द फील्डर्स विल थ्रो द बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू द विकेट कीपर, और विकेट कीपर अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वो भागते हुए स्टम्प्स के पास आता है, बॉल कलेक्ट करता है एंड देन ही अगेन रन्स बैक 20 यार्ड्स। तो ये एक पूरे मैच में महज एक मल्टी डे क्रिकेट में 16 किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो आप इससे समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फिटनेस रिक्वायर्ड है एक विकेट को, एक कीपर को भी। 6 किलोमीटर कवर कर रहा है एक T20 में। इमेजिन द अमाउंट ऑफ फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड, एंड्योरेंस रिक्वायर्ड। Who all are wicket keepers and how did you become one? This is a question which I have for you. You can think about it. You can say कैसे आप विकेट कीपर बने हो और आप क्या है एक विकेट कीपर का मेन रोल। तो जैसे आप जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट विकेट कीपर के लिए होता है एजिलिटी, कंसंट्रेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, लेफ्ट साइड राइट साइड शफल होना है, डाइव करना है लैटरली, ऊपर की तरफ वर्टिकल जंप करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब करने के लिए थ्रू आउट द मैच एक फिजिकल एंड्योरेंस कैपेसिटी, एक्सप्लोसिवनेस रहना चाहिए एक कीपर में। फील्डर्स की बात करें तो फील्डर्स हैव बीन शोन टू कवर 8 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस इन एन 80 मिनट 2020 इनिंग्स। तो जैसे आप जानते हो फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के अंदर क्लोज फील्डर्स रहते हैं, इनफील्ड जो बोलते हैं, और बाउंड्री लाइन के बाहर पास आउटफील्ड जो होता है खड़े होते हैं। अभी अलग अलग फील्डर्स का अलग अलग रोल होता है। बाहर जो रहते हैं वो लोगों को ज़्यादा बाउंड्री लाइन के पास स्प्रिंट मार के बॉल को रोकना पड़ता है, स्लाइड मार के। वही जो अंदर 30 यार्ड के अंदर खड़े हैं उनका काम कितना क्विक रिएक्शन हो, कितना जल्दी वो बॉल को पकड़ पा रहे हैं, वो इन सर्कल में उसको रोक पा रहे हैं आउटफील्ड में जाने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से इनफील्डर्स को आउटफील्डर्स को भी फिजिकली ट्रेन करना चाहिए। दिस इज अ अप्रोच विच इज नीडेड। तो अभी ट्रेनिंग इतना एडवांस हो गया है कि सिर्फ भगाना उनको इतने राउंड से नहीं चलेगा, आपको हर पोजीशन का डिमांड समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, पोजिशनल डिमांड्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, which is the most demanding and most challenging of all the roles in cricket. So this is a question which I have for all the budding players and coaches over here. Which according to you do you think is the most demanding, सबसे कठिन और सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा होता है क्रिकेट में? तो ये की वेपन्स है, मैं इसके बारे में आपको आगे जाके बताता हूँ, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ये सिर्फ एक चार्ट है जहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन किया है कि कौन से ट्रेनिंग मेथड्स ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कंडीशनिंग इम्प्रूव किया जाए, फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग इम्प्रूव किया जाए प्लेयर्स का, चाहे वो फील्ड पे हो या फिर जिम पे हो। शॉर्ट इंटरवल हिट, रिपीट स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग, लॉन्ग हिट और फिर गेम बेस्ड हिट। तो यहाँ पे मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चीज़ों का। तो शॉर्ट इंटरवल HIIT का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक ट्रेनिंग कंडीशनिंग का मेथड है जो अराउंड द वर्ल्ड अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को तैयार करने के लिए, चाहे वो फॉर्मेट शॉर्टर फॉर्मेट हो या फिर लॉन्गर फॉर्मेट हो। शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब होता है 10 सेकेंड 15 सेकेंड भगाना और 10-15 सेकेंड का रेस्ट देना, ऐसे कंटिन्यूस रेपिटेशंस चलते हैं। रिपीट स्प्रिंट ट्रेनिंग में एक स्प्रिंट मारते हैं जो ऑल आउट इंटेंसिटी होता है 100%, और उसके बाद एक 10 सेकेंड का ब्रेक और फिर रिपीट स्प्रिंट करता है वो। स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने हैं क्रिकेटर्स में, जहाँ पे इंटरवल्स में स्प्रिंट करते हैं, जहाँ पे एक स्प्रिंट किया 20-30 मीटर का और फिर दे हैव टेकन अ ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड्स, लेट्स से 20 सेकेंड्स, एंड देन दे अगेन डू अ स्प्रिंट। तो ये जो है स्प्रिंट ट्रेनिंग, ये हाई इंटेंसिटी का है। शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग फिर से कंडीशनिंग जो है एनारोबिक कंडीशनिंग बोलते हैं,
और एरोबिक कंडीशनिंग दोनों को टारगेट किया जा सकता है। लॉन्ग इंटरवल ट्रेनिंग, ये आपका क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अभी आप सुनते होंगे कि सर 1-2 मिनट भगाने से क्या होगा, अब तो टाइम बदल गया है, 1-2 मिनट कंटिन्यूस भगाने से हमको क्या फ़ायदा होगा। स्पोर्ट तो कभी 1-2 मिनट कंटिन्यूसली तो भागते नहीं है हम लोग। हमारा स्पोर्ट में तो हम लोग बस 10-20 सेकंड का एक इंटेंसिटी का रहता है, फिर रेस्ट मिलता है, फिर ऐसे करते हैं हम लोग रिपीट। बट ये सब करने के लिए शॉर्ट इंटरवल स्प्रिंट करेंगे, रिपीट स्प्रिंट करने के लिए स्प्रिंट इंटरवल, आप मानो मुझे कि ये लॉन्ग इंटरवल जो है ये आपका एरोबिक एंड्योरेंस बेस बनाता है। तो लंबे समय का जो 1-2 मिनट का कंटिन्यूस रन कराते हैं उससे आपका जो एरोबिक फिटनेस है वो बनता है, एक बेस बनता है। तो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये एरोबिक बेस ट्रांसलेट होता है फिर शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग्स में, रिपीट स्प्रिंट में, स्प्रिंट इंटरवल्स में। और ऑल्सो ये एरोबिक एंड्योरेंस जो बेस है ये आपको मैचेस में अलग अलग कंडीशंस में आपको अडेप्ट होने के लिए ईजी होता है। अलग अलग वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको एडजस्ट होने के लिए, आपके बॉडी को एडजस्ट करने के लिए थर्मो रेगुलेशन जो बोलते हैं वो करने में मदद करेगा। तो लॉन्ग इंटरवल को कभी कभी भी ऑफ सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको यूटिलाइज करते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। तो यहाँ पे जो है मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि डू क्रिकेटर्स रियली नीड टू रन लॉन्गर डिस्टेंसेस लाइक 100-200 मीटर्स रनिंग, या 20-30 मीटर के रनिंग का जरूरी काफ़ी है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड, थिंक अबाउट इट। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया है आपको इससे समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लॉन्ग इंटरवल हिट 1-2 मिनट के लिए करते हैं तो कितना डिस्टेंस भागना सही है? क्या 100-200 मीटर भागना एक क्रिकेटर के लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग में, या फिर 20-30 मीटर भागने से भी काफ़ी हो जाएगा? व्हाट इज़ योर आंसर टू दिस? आखिरी जो ट्रेनिंग मेथड है ये गेम बेस्ड हाई इंटेंसिटी इंटरवल इन ट्रेनिंग बोलते हैं। गेम बेस्ड जो होता है ये आपके ओपन नेट्स के तौर से या फिर अलग अलग सिचुएशनल डिमांड्स के हिसाब से ओपन नेट्स या फिर क्लोज नेट्स में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे बैट्समैन को रनिंग बिटवीन द विकेट्स करा सकते हैं। बॉलर्स जो पैर में बॉलिंग कर रहे हैं उनको बार बार शफल किया जा सकता है रेस्ट इंटरवल के साथ। इनफील्ड आउटफील्ड को स्विच किया जा सकता है प्लेयर को। तो ये गेम बेस्ड कंडीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोचेस सब कराते हैं आपको, दे हैव गुड नॉलेज ऑफ दिस, दे नो दैट विच प्लेयर। सो यहाँ पे जो कोच है एक एसएनसी कोच के साथ बैठता है एंड डिस्कस करता है कि कौन सा प्लेयर का क्या वीकनेस है, और उसके हिसाब से जब वो स्किल सेशन लेते हैं उनका, ओपन नेट्स जब लेते हैं तो अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया जाता है ये गेम बेस्ड कंडीशनिंग में, जहाँ पे उनका फिटनेस को बढ़ाया जाए और ट्रेनिंग के अंदर ही ये कंडीशनिंग और इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हालांकि इसको ज़्यादा हम कभी सोचते नहीं इसके बारे में, बट इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, स्पेशली जब आपका सीजन चल रहा हो। सीजन में आपको एसएनसी एक्सपर्ट्स ज़्यादा भगा नहीं पाएंगे, शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग थोड़ा ही करा पाएंगे, लॉन्ग इंटरवल ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम हो जाता है क्योंकि आप गेम्स ज़्यादा खेलते हो, ओपन नेट ज़्यादा करते हो सीजन में, तो इसके तौर पे आप ट्रेनिंग को मॉड्यूलेट कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करके प्लेयर्स को ट्रेन कर सकते हो। तो दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हिट बेस्ड ड्रिल्स जो आप देख सकते हो। ये एक सदर्न क्रॉस एनर्जाइजर हो गया जहाँ पे प्लेयर्स बॉल थ्रो करेंगे, भागेंगे कोचेस की तरफ, फिर से रिसीव करेंगे बॉल को। कैचर्स है, कोचेस है, प्लेयर्स है। ये एक राउंड द वर्ल्ड ट्रेनिंग मेथड हो गया जहाँ पे विकेट्स है, प्लेयर्स, एक कोच खड़ा रहेगा जो बैट और मिट के साथ बॉल देगा, रिसीव करेंगे प्लेयर्स भाग के, फिर वो भागेंगे ऑपोजिट स्टंप्स की ओर, फिर से कोच वहाँ पे बॉल हिट करेगा, आपको स्टंप्स के ऊपर शाई करना है, यू शाई टुवर्ड्स द विकेट्स। सो दैट इज हाउ यू डू दिस कंडीशनिंग ड्रिल। एक चमिंदाज 80 मीटर्स 30 मीटर्स ड्रिल हो गया जहाँ पे 80 मीटर्स भाग रहे हो, 30 मीटर्स का रिकवरी है, फिर 80 मीटर्स भाग रहे हो, 30 मीटर्स का रिकवरी है। तो ये एक और मेथड हो गया हिट बेस्ड कंडीशनिंग ड्रिल का। सो दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट ये ट्रेनिंग्स आप सीख सकते हो। यू कैन डू दिस बाय learning from SNC coaches, with the coaches, your cricket coaches who know all these drills. You can understand how conditioning can be done in this way.
तो इसके पहले जो है टेस्टिंग बैटरी, जो अपना आखिरी टॉपिक है, इसके पहले मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट स्पोर्ट्स साइंस एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एंड अलग अलग एरियाज जो है। सो एज यू कैन सी कि आपको मैंने अभी बेसिक लेवल पे मैंने ये सब टॉपिक्स दिखाया हुआ है, कैसे मेथड्स है ट्रेनिंग करने के। बट फॉर मी टू गो डीपर एंड एक्सप्लेन यू मोर डीपली, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स एंड कोचेज ऑल्सो टू कीप अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। अलग अलग वर्कशॉप्स करना है, सर्टिफिकेशंस करना है, कोर्सेज कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल्सो देर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स। अभी हमारा इंस्टीट्यूट हो गया ISST, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोर्स किया जाता है, स्पोर्ट्स साइंस का बैचलर्स मास्टर्स किया जाता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का किया जाता है। बट स्पोर्ट्स साइंस का कोर्स मेनली इज ट्राइंग टू वर्क ऑन ऑल दीज एरियाज। तो हमारे पास जो एथलीट्स आते हैं, हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता है, वहाँ पे हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज रहता है हमारे पास। हमारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का टेक्नोलॉजी है, जैसे टाइमिंग गेट्स हो गया, ब्लेज पॉड्स हो गया रिएक्शन टाइम के लिए, इन बॉडी कॉम्पोजिशन आपका बॉडी फैट के लिए, डाइट उसके हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजियोलॉजिकल डिमांड जो है ये एक पार्ट हो गया, एक आपका जो पूरा पजल है। इसके और बहुत सारे पीसेस है, जैसे एक बायोमैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ये सब एरिया समझना एक प्लेयर को, एक कोच को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देर आर मेनी कोर्सेज, यू कैन डू इट ऑनलाइन, यू कैन डू इट क्लासरूम, अगर इफ यू वांट टू स्टडी व्हाइल परस्यूइंग योर स्पोर्ट। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं अभी और साइमल्टेनियसली क्लासरूम कोर्स परस्यू कर रहे हैं। तो एक जनरल वे में बता रहा हूँ आपको कि यू हैव टू बी एबल टू अपग्रेड योर सेल्फ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका ट्रेनिंग कैसे इंप्रूव किया जाए। अभी ट्रेनिंग बदल रहा है, प्लेयर्स को भी यू हैव टू बी स्मार्ट, यू नीड टू नो हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ व्हेन यू डोंट हैव एनीवन अराउंड यू। ऐसा नहीं कि 365 डेज आपके पास एक कोच रहेंगे, आप कैंप में जाओगे या फिर आप कहीं पे घर पे रहोगे, तो खुद पे ट्रेनिंग करने के लिए आपको वो नॉलेज रहना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू make sure that you also keep upgrading yourself to different courses. So all these courses we have at Institute of Sports Science and Technology as well. We have our high performance center, जहाँ पे एक जिम है, ग्राउंड है, जहाँ पे हम प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, टेक्नोलॉजी से हम उनको टेस्ट करते हैं और फिर उनको ट्रेन करते हैं। सो यू कैन गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में हैं, जहाँ पे आप कर सकते हो। वन इज ISST which we are working at. Now coming to testing battery, so basically the goal of testing battery is to test the player's endurance capacity. तो आप डेफिनेटली जो जो कैंप में गए होंगे उनका रिपीटेड रनर टू टेस्ट लिया होगा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स का एक टेस्ट होता है, आपके ट्रेनर ने लिया हुआ। यो टेस्ट तो सबको ही पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है एरोबिक एंड्योरेंस के लिए। और मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट MAS टेस्ट करके एक टेस्ट होता है, जहाँ पे एक सिंपल टेस्ट होता है ग्राउंड का, 1.5 माइल्स अंदाजे से 2 किलोमीटर भगाते हैं और कितने टाइम में आपने कवर किया है वो मेजर करके हम कैलकुलेट करके फिर आपको उसके हिसाब से ट्रेन करते हैं इम्प्रूव करने के लिए आपका कैपेसिटी। तो इस टेस्ट को करना सबसे पहले बेसलाइन मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू डू दिस टेस्टिंग बैटरी, टेस्ट देम एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रेनिंग देम। और हर क्वार्टरली 3-4 महीने के बाद उनका टेस्ट वापस कर सकते हो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। आप असेस कर सकते हो कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है प्लेयर में, किसको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। साइमल्टेनियसली जो ट्रेनिंग्स है यहाँ पे, लॉन्ग इंटरवल ट्रेनिंग का 1 मिनट का ट्रेनिंग आप जिम में एक सर्किट बना के वैसे भी करा सकते हो, जहाँ पे डंबल्स के साथ अलग अलग तरीके से आप सर्किट क्रिएट कर सकते हो। पुशअप हो गया, रेनिगेड रोज हो गए, फिर बर्पीज हो गया, बैटल रोप्स हो गए। ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। यू कैन लर्न ऑल दैट इन डिटेल इफ यू डू कोर्सेज ऑन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। सो ये सब आप कर सकते हो जिम में भी। तो कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ ग्राउंड पे दौड़ाना ही नहीं है, बट जिम में भी थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कराना पड़ता है, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा आपके मसल्स को कंटिन्यूसली भागने के लिए, कंटिन्यूसली फिटनेस लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते थे कि क्या एक महज 12-13 साल के बच्चे को कराना ज़रूरी बनता है जिम ट्रेनिंग। मैं बोलता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट मॉडल होता है, जहाँ पे एथलीट का
एमेच्योर लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक का एक जो मैप बना है, इसलिए इस पे बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने, कोचेस ने काम किया हुआ है और उन्होंने एक मॉडल बनाया है जहाँ पे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं क्लियरली कि यू हैव टू ट्रेन फॉर स्ट्रेंथ एट एनी एज। 12 इयर्स के बच्चों को, स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर गोइंग थ्रू मेच्योरिटी, आपके बोन्स अभी फॉर्म नहीं है प्योरली, तो आपको लाइट वेट्स के साथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप जब सडन हाइट ग्रोथ होता है तो आपके बॉडी को वो हाइट ग्रोथ को सपोर्ट करने का मसल्स में स्ट्रेंथ रहना चाहिए, बोन्स शुड बी प्रॉपरली डेवलप्ड. So this will happen only if you keep doing gym training simultaneously, not just through running, plyometrics, explosive work, but also gym training with weights, light weights. हल्के हल्के वेट्स के साथ आप कर सकते हो, लंजेस हो गए, स्क्वाट हो गया, लैटरल लंजेस हो गए, रेनेगेड रोज हो गया, तो शोल्डर प्रेसेस हो गया, स्प्लिट लेग, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं. तो yes, a 12-year-old can and has to work in the gym as well, as much as they work on the field. It is equally important to support them in the long term. आगे जाके उसका इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा, शायद तुरंत नहीं पता चलेगा, 4-5 साल बाद आपने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है टाइम जिम में, वो आपको बाद में पता चल जाएगा. So this is basically what I wanted to cover as a part of this presentation, जहाँ पे हम लोग फिजियोलॉजिकल डिमांड्स क्या है एक स्पोर्ट के लिए, एक लंग कैपेसिटी, हार्ट रेट कितना मेंटेन करना है, उसके लिए कितना ट्रेनिंग करना है, कैसे मेथड्स होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बेसिक प्रेजेंटेशन लिया है जिससे आपको थोड़ा सा आपके डाउट्स जो है शायद क्लैरिफाई हो सकते हैं. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट ISST. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आपके पॉइंट सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. You can let us know if you have any queries pertaining to what else is required from a physical performance, और क्या क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए, कैसे आपको ट्रेन करना चाहिए, ये सब हम आपको डेफिनेटली असिस्टेंस देंगे और क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे गोइंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच एवरीवन. This was the end of the presentation and I hope I was able to answer at least some of your questions pertaining to physiological demands of strength and cricketers in junior and youth level. Thank you.